So hello guys, welcome to the next video of our series Python for Data Science. So previously we have discussed about the fundamental data types और हमने number systems के बारे में भी पढ़ा, and right now we have completed all the things. So we are going to move towards the other data types. So other data types means other data type का मतलब होता है easy words में formed by using फंडामेंटल डेटा टाइप्स. ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स को यूज़ करके हम अदर डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं. डेटा टाइप्स, ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिस्ट. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिस्ट. व्हाट इज लिस्ट एक्चुअली? सो लिस्ट इज जस्ट लाइक if we take example L1 is the list. You have to define this inside the square braces. आपको square braces के अंदर set of elements देना है, like 1, 2, 3. You can give string also as element, okay. Then float values, any element you can use inside the list. So list is defined inside the square braces and it is an ordered list. What it means? It is having the property of ordering, means the elements are in order, like this is the first element, this is the second element, third element, fourth, fifth, sixth, seventh. So the list is in order, the elements are in order. So what is the definition? It is an ordered mutable collection of items. So this is the collection of items but are in a particular order, like first element, then second element, then third element. So हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को फेच करने के लिए क्या करते हैं? इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. जैसे दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ना, हम क्या करने जा रहे हैं? इंडेक्सिंग को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. इंडेक्सिंग मीन्स पोजीशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट की क्या पोजीशन है. दिस इज़ एट द पोजीशन ऑफ zeroth position, zeroth indexing. Then second element means first indexing, third element means second indexing. So these are the indexing, means position क्या है. जैसे zeroth position, first position, second position. So जो elements की position है वो तो first to infinity जाती है, ठीक है, वो तो first to infinity जाती है. बट जो हमारा indexing है वो कहाँ से जाता है? 0 to infinity, ठीक है. तो जैसे 0 जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्सिंग क्या होगा? 0. सेकेंड एलिमेंट का 1 होगा, थर्ड एलिमेंट का 2 होगा इंडेक्सिंग. सो दिस इज़ ऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड कलेक्शन ऑफ आइटम्स. आई थिंक दिस इज़ क्लियर. सो हियर वी हैव एग्जांपल फ्रूट्स इज़ अ लिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू फेच एप्पल, so what you have to do? You have to write fruits and inside this square braces you have to give the indexing value. So by giving the indexing value you can fetch the element. So at the 0th index we are going to fetch the value at 0th index. So जो भी value 0th index पे है उसको print कर दो, means output will be apple because the 0th value 0th indexed value will be apple, is apple, okay. So we have some key operations also, like dot append will add a particular element in last of the list, okay. Like cherry is the last element and if we perform fruits dot append orange, then orange will be added after that, okay. Orange, so the last element will become orange now because it is added, it is appended in that list, it is added in the list in last place. क्योंकि एक ऑर्डर है ना, 0th index, first index, third index, like we have 0th index, first index, third index. So in the 4th index, 0th, first and second, 0 index, first index and second index, then in the third index orange will be added, okay. So insert, what insert does actually? It adds elements at particular location, at particular index, like insert grape at first index. First index means banana, जहाँ पे बनाना लिखा है बनाना और चेरी एंड ऑरेंज शिफ्ट हो जाएंगे और उस इंडेक्स पे क्या हो जाएगा? ग्रेप आ जाएगा, ओके. आई थिंक दिस इज़ क्लियर. insert uses the
इंडेक्स वैल्यू टू पुट द एलिमेंट, बट अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है। रिमूव क्या करेगा, आप इसको जो भी एलिमेंट देंगे लाइक बनाना, देन इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट लिस्ट। ओके, पॉप क्या करता है, जैसे कि अपेंड लास्ट में ऐड कर रहा था, वैसे पॉप लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ठीक है, जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको पॉप कर देता है, उसको रिमूव करके। एंड व्हाट यू कैन डू ऑल्सो, लाइक इफ़ यू राइट a इक्वल्स टू f डॉट पॉप, देन बाय पॉपिंग लाइक orange will be removed from that list and it will be returned by this function। pop क्या करता है, रिमूव करके उसको रिटर्न कर देता है। रिटर्न मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, वो ऑरेंज होगी, एंड वी कैन स्टोर दैट वैल्यू इनसाइड एनी वेरिएबल। तो बेसिकली जब भी हमको कोई वैल्यू रिमूव करके उसको स्टोर करना होता है, सो हम पॉप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। या लाइक हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा, बट वी डिस्कस्ड ओनली अबाउट वन डे लिस्ट। वन डे लिस्ट मीन्स inside this square braces you have some elements। okay, elements can be of any type। ठीक है, so fundamental elements you can say, these are fundamental elements। so size क्या होगा इसका, size होगा len of this list, जो इसकी लेंथ होगी वही इसका साइज होगा। देन सेकेंड इज़ द 2D लिस्ट। 2D लिस्ट क्या होता है, इनसाइड द मेन लिस्ट यू डिफाइन सब लिस्ट्स। ठीक है, आप सब लिस्ट को डिफाइन कर देते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द मेन लिस्ट एंड इसके अंदर क्या है, आपने स्मॉलर लिस्ट भी डिफाइन कर दी है। मीन्स ईच एलिमेंट विल बी परफॉर्म एज अ लिस्ट। इन द लिस्ट ईच एलिमेंट इज़ वर्किंग एज अ सेपरेट लिस्ट, और उसके अंदर आपने फंडामेंटल डेटा टाइप्स का एलिमेंट डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसका साइज़ क्या होगा, जैसे कि राइट नाउ वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स, मीन्स 2 सब लिस्ट इनसाइड द मेन लिस्ट, देन 2, बिकॉज जितना साइज़ क्या होता है, लेंथ होता है ना लिस्ट का। तो इस लिस्ट की, मेन लिस्ट की लेंथ क्या है, 2 ही एलिमेंट्स तो हैं, फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट, तो 2 इज़ द साइज। एंड क्रॉस ईच लिस्ट इनसाइड द मेन लिस्ट इज़ हैविंग 4 एलिमेंट्स, मीन्स जो भी सब लिस्ट है उसका साइज़ क्या है, 4 है। मीन्स इस सब लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, इसके अंदर कितने हैं, 4 हैं, एंड इट मीन्स 2 क्रॉस 4, दिस इज़ द साइज। ओके, मीन्स टोटल 8 एलिमेंट्स वी हैव, 8 एक्चुअल एलिमेंट्स वी हैव। 2 इज़ द साइज ऑफ मेन लिस्ट एंड इनसाइड दैट मेन लिस्ट व्हाट यू हैव सब लिस्ट्स। तो सब लिस्ट का जो साइज़ होगा वो क्रॉस के बाद ये लिखा जाएगा। ठीक है, देन 3D लिस्ट। 3D लिस्ट क्या होता है, ईजी है। मेन लिस्ट के अंदर जो सब लिस्ट्स थे उसके अंदर भी हमारे पास इनसाइड दैट ऑल्सो वी हैव स्मॉलर लिस्ट्स, और इसके अंदर हमने एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं, 3 एलिमेंट्स। ठीक है, सो व्हाट इज़ द साइज ऑफ दिस लिस्ट, दिस इज़ 2 क्रॉस क्या होगा बताइए। ये जो है मेन लिस्ट, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट, एंड इनसाइड दिस एलिमेंट हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव, इसके अंदर भी 2 ही 2 एलिमेंट्स है ना, सो 2 क्रॉस 2। देन इनसाइड दिस लाइक इनसाइड द सब लिस्ट यू हैव 2 एलिमेंट्स। सो इन एलिमेंट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, 3 3 3 3, सो 2 क्रॉस 3, दिस इज़ द साइज ऑफ 3D लिस्ट। सो हम लोग अब इसके बाद क्या होता है, 4D भी होता है, 5D भी होता है, तो उसका कुछ नहीं है एक्चुअली, बट ये है कि इनसाइड द लिस्ट यू हैव टू पुट अनदर लिस्ट। सो इट इज़ जस्ट लाइक नेस्टेड लिस्ट। आप लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट डिफाइन करेंगे, सो डायमेंशन चेंज होता जाएगा और उसका साइज़ भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। सो 2 क्रॉस 3 मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव, 4 3 12, काउंट कर सकते हैं, 3 6 9 12 एलिमेंट्स वी हैव। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। 1D 2D एंड 3D लिस्ट अभी डिस्कस किया, बाकी हम और भी इसको इंक्लूड करेंगे। डेटा साइंस में जनरली हम इसको टेंसर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिस्ट वो टेंसर क्या है, कह सकते हैं फॉर्म है डेटा का, जो कि क्या करता है, इन नंबर्स को जनरली डायमेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे 1D लिस्ट है तो
वन डी लिस्ट है तो वन डी टेंसर होता है, ठीक है। फिर टू डी लिस्ट है तो हमारा कौन सा होगा, टू डायमेंशनल टेंसर होगा। थ्री डी लिस्ट है तो थ्री डायमेंशनल टेंसर होगा, ठीक है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ अभी क्लियर हो गया होगा लिस्ट के 1D 2D एंड 3D फॉर्म्स, ठीक है। दीज आर सम फंक्शंस एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट इज़ म्यूटेबल इन नेचर। म्यूटेबल मीन्स यू कैन चेंज द एलिमेंट। जैसे आपके पास इंडेक्सिंग थी, एक एलिमेंट को फेच करने के लिए यू हैव टू यूज़ द इंडेक्सिंग, लाइक ज़ीरोथ इंडेक्सिंग मीन्स इफ़ यू वांट टू फेच द वन लाइक फर्स्ट एलिमेंट, सो व्हाट यू हैव टू डू, L1 का ज़ीरोथ इंडेक्स वैल्यू लेके आओ, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट लेके आओ, ठीक है। इफ़ थर्ड एलिमेंट चाहिए तो थर्ड मीन्स सेकेंड इंडेक्स होगा ना, 1 माइनस कर दो पोजीशन में से, सो दिस विल गिव द थर्ड एलिमेंट, ओके। इफ़ यू वांट टू चेंज दिस पोजीशन वैल्यू, कि सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू है जो कि 3 है, सॉरी सेकेंड इंडेक्स पे जो कि वैल्यू है वो 3 है, मीन्स थर्ड पोजीशन पे, इसको 3 से चेंज करके 5 करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि L2 का जो थर्ड पोजीशन मीन्स सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू है उसको 5 कर दो, ओके। सो दिस मच इज़ ईजी, ओके। ये बहुत ईजी है, मीन्स हमने क्या किया, वैल्यू को अपडेट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो इट मीन्स द लिस्ट is mutable in nature. The elements can be replaced, can be updated, can be changed. So it means mutability, ठीक है। I think this is clear. So आप लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं, और बाकी ये कुछ फंक्शंस हैं जो मेंशन किए हैं, अदर फंक्शंस भी है बट जनरली हम इन्हीं को यूज़ करते हैं, सो दैट्स व्हाई आई मेंशन दोस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द टपल। आगे मूव करते हैं टपल की तरफ। सो टपल इज़ सिमिलर टू लिस्ट बट we define inside this, what you can say, the small braces, ठीक है। जो small braces होते हैं उनके अंदर आपको डिफ़ाइन करना है, लाइक 10.0 2.0। अर्लियर जो हम टपल के बारे में जानते थे वो था कि आप सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, लाइक 2 3 5, लाइक इंटीजर। if you are defining a string then all the elements will be of a string type. If you are defining float then all the elements will be of float type. But right now you can store any data type, like any elements of any type of elements you can store in the tuple also. But what is the main difference? It is immutable in nature. It also follows the indexing type of things, indexing thing, because it is also an ordered collection. ये भी एक ordered collection है. So first index होगा उसका zeroth, first जो हमारा element होगा उसका zeroth index होगा, second का first index, ठीक है. But जो हमारा ये collection है elements का, so elements cannot be changed because it is immutable in nature. If you defined like 10.0, so this 10.0 cannot be replaced, cannot be updated. You can add new elements but you cannot cannot change after creation. Okay, आपने एक बार create कर दिया तो आप change नहीं कर सकते. The next thing is set. So set क्या होता है? This is unique collection of elements. Okay, आपके जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो कलेक्शन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है. लाइक इफ़ यू डिफाइन 1 2 3 3 2, देन ये जो है ये क्या है, रिपीटेड है, इट विल ऑटोमेटिकली रिमूव्ड बिकॉज लिस्ट ऑलवेज कंटेन्स यूनिक सेट ऑफ एलिमेंट्स. इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं. तो आपके जैसे 1 2 3 है, ये क्या है, यूनिक एलिमेंट्स है. तो दिस इज़ सेट. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सेट के बारे में. तो कुछ सेट ऑपरेशन, इट इज़ ऑल्सो म्यूटेबल इन नेचर, यू कैन चेंज द एलिमेंट्स इनसाइड दैट. ओके, एंड ऑर्डर्ड होता है, ये ऑर्डर्ड है बिकॉज इंडेक्सिंग वगैरह यूज़ होता है सब. बट ये क्या है, एक यूनिक सेट. आपके जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक होंगे. यू कांट रिपीट द एलिमेंट्स इनसाइड द सेट. कुछ सेट ऑपरेशन है लाइक ऐड फंक्शन, रिमूव फंक्शन. इफ़ यू गिव एनी वैल्यू लाइक 4, सो दिस विल बी एडेड टू दैट सेट. रिमूव के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं. और दिस इज़ द मेंबरशिप ऑपरेशन. इन ऑपरेटर जो होता है वो मेंबरशिप की तरह चेक करता है. मीन्स लाइक इफ़ यू वांट टू चेक अ पर्टिकुलर एलिमेंट इनसाइड दैट सेट और नॉट, सो यू कैन पुट इन लाइक 3 इन अ पर्टिकुलर सेट.
like unique numbers. So 3 in unique numbers, it will give true, it will return true because 3 is inside that what you can say set. Okay, then yeah, you have some basic set operation, like you can perform union, you can perform intersection, you can perform subtraction. So subtraction का output क्या होगा, a minus b means give all the elements of a which is not in b, ठीक है, which is not in b. So a के अंदर ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, 2b b में है, 3b है, 1 नहीं है, so it will return 1. ओके, मीन्स a के अंदर से माइनस कर दो सारे कॉमन एलिमेंट्स जो b के अंदर भी है, ठीक है. a एंड b क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स दे दो. कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 and 3, यहाँ पे आउटपुट में भी है. एंड a और b मीन्स जो a में है वो भी दे दो, जो कॉमन है वो भी, जो यूनिक है वो भी दे दो, और जो कॉमन है वो भी रिटर्न कर दो. मीन्स सारे एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच इज़ लाइक if you are performing OR operation or union between any number of sets, so all the elements, all the unique elements will be returned, like 1 2 3 4, these are the unique elements, it will be returned. Okay, so I think set is also clear. You have to like use it when you are working with unique number of elements. You don't want the repeated values. Okay, so set के साथ तब आप काम कर सकते हैं. सो डिक्शनरी है हमारे पास नेक्स्ट. सो व्हाट इज़ डिक्शनरी एक्चुअली? सो ऑल द अदर थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड, दे आर वर्किंग ऑन ऑर्डर, दे यूज़ द इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, बट डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होता है. इट वर्क्स ऑन, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड इन द कर्ली ब्रेसेस, बट यू वर्क विथ की वैल्यू पेयर. ठीक है, आप की वैल्यू पेयर के साथ काम करते हैं, ऐसे ही डिफाइन करना है आपको. ठीक है, की कोलन वैल्यू कॉमा की कोलन वैल्यू. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर. सो आपका एक की होगा, वैल्यू होगा, की होगा, वैल्यू होगा, की होगा, वैल्यू होगा. इसको भी आप फंडामेंटल डेटा टाइप यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली की कैन बी ऑफ लाइक इट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है आप, बट मेन थिंग इज़ दैट की शुड बी व्हाट यू कैन से यूनिक इन नेचर. ओके, इट शुड नॉट म्यूटेबल. ओके, it is immutable in nature because like if you defined particular set of keys then you cannot change the keys. okay, आप की की वैल्यू मीन्स कीज़ को नहीं चेंज कर सकते हैं. it is immutable in nature and it must be unique. जो भी की आप डिफ़ाइन कर रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए. जैसे आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा प्राइमरी की के बारे में. सो यहाँ पे की वैसे ही वर्क करती है. अगर आपकी की यूनिक नहीं होगी तो फिर आप कैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू को फेच करेंगे विच इज़ यूनिक. ओके, so that's why you have to keep in mind the key should be unique and keys are also immutable in nature. You cannot change it. Okay, so like here we have person dictionary where name is a key and alias is a value, age is key, 25 is value. So like if you want to fetch any value then what you have to write, like if D is the dictionary then by D you have to define, earlier we were defining inside the square braces like indexing value, index value, but right now आपको की वैल्यू की जो की है उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, की वैल्यू मैं बोलने जा रहा था बट एक्चुअली यहाँ जो है वो की मीन्स आपको जब भी कोई वैल्यू फेच करनी है then you have to tell like you have the information about the key. So you have to define the key inside this square braces. D is the dictionary, then put the square braces and inside that you have to put the key, then it will return a particular value. Okay, ये क्या करेगा, आपको वैल्यू देगा. जैसे हम इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू फेच कर रहे थे वैसे हम यहाँ की के थ्रू वैल्यू फेच करेंगे. जैसे यहाँ दिया हुआ है पर्सन देन नेम, नेम इज़ द की. सो यहाँ पे ये ढूंढेगा कि नेम की कौन है, या ये है नेम की. सो इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा. आउटपुट विल बी अलाइस. कुछ की ऑपरेशंस हैं लाइक इफ़ यू परफॉर्म पर्सन सिटी इक्वल्स टू मुंबई. सो अगर सिटी कोई की होगी तो वो अपडेट हो जाएगी वैल्यू बिकॉज इट इज़ म्यूटेबल इन नेचर. वैल्यू म्यूटेबल है बट की इम्यूटेबल है. ठीक है, क्लियर रखिएगा. एंड अगर वो कोई की नहीं है वहाँ पे देन इट विल बी एडेड टू दैट डिक्शनरी. सो वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा. अगर वहाँ पे कोई है तो फिर अपडेट हो जाएगा.
मीन्स अगर वहाँ पे ऑलरेडी सिटी है की तो फिर अपडेट हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर ऐड हो जाएगा। पॉप एज, आप यहाँ पे क्या करें, की वैल्यू दे रहे हैं तो उस वैल्यू को पॉप कर देगा। पॉप जनरली पिछले वाले में लास्ट एलिमेंट को रिमूव इसलिए कर रहा था क्योंकि वहाँ पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था, तो लास्ट इंडेक्स को रिमूव कर दे रहा था, लास्ट इंडेक्स वैल्यू। बट यहाँ पे तो हमें की देना पड़ेगा ना, so that's why we are giving the key to pop, then it will remove a particular element. Okay, then again this is the membership. Name in person means if you want to check any key is present in that dictionary or not, then you can use, like you have to define the key, if a particular key in dictionary or not, then it will return true or false based on the presence or existence. So I have also defined here the loop how you can fetch key value both from that dictionary. So what you have to do, you just have to write for key value, आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, key value in dictionary, कोई भी डिक्शनरी जैसे d डॉट आइटम्स। ये आइटम्स फंक्शन से क्या होता है, आपका वैल्यू एंड की दोनों का पेयर फैच होता है और हमने उसको की और वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, की और वैल में। देन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, लाइक प्रिंट कर सकते हैं की कॉमा वैल। सो ये आइटम्स फंक्शन क्या करता है, दोनों के पेयर को फैच करके लेके आता है, ठीक है, लाइक की और वैल्यू दोनों को फैच करेगा, फिर हमने दोनों को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, की और वैल दोनों को डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करके फिर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लूप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिया आपको कि डॉट आइटम्स फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आइटम्स फंक्शन क्या करता है, आपके एलिमेंट के साथ मीन्स पूरे एलिमेंट को उठा के लेके आता है, की वैल्यू पेयर बोथ। सो ईच एलिमेंट लाइक यू ईच एलिमेंट इज़ शोन एज की वैल्यू पेयर बोथ। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ रेंज। रेंज के बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम डेटा साइंस का प्रॉपर पांडास नमपाई के बारे में स्टार्ट करेंगे, बट राइट नाउ अभी मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। रेंज बेसिकली क्या करता है, आपको रेंज मीन्स वैल्यूज़ लेके आता है इन अ रेंज, लाइक इफ़ यू गिव रेंज 1,6, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस 1 2 3 4 5 6 will not be included because it is range it shows like up to 6, 1 2 6 means up to 6 means 6 is not included, ठीक है। आप एंड स्टॉप को इंक्लूड नहीं करेंगे, स्टार्ट इज़ 1 एंड इज़ 6, बट यू डोंट हैव टू इंक्लूड 6. So I think this is clear. So if you do not define the start, then by default 0 will be the start. Okay, like range 6, so 0 will be the start by default. So 0 1 2 3 4 5. Okay, then this was the first thing. Second, third thing is you can define the step also. Range 1 comma 8 comma 2. So this is the step position, like how many step you want to move. You want to move like with step of 2, like what will be the output 1, then another 2 step move करना है. By default हम एक एक step move करते हैं, but you can define the step also. 1 then 3 5 7 then 8 will not be included, और अगर हम ऐड भी करते हैं तो 9 पे जाएगा. So that's why these are the outputs. Okay, आप निगेटिव स्टेप भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक फिर आपको क्या है अपोजिट मीन्स ऐसे देना पड़ेगा, जैसे 8 1 स्टार्ट 8 है एंड 1 है, स्टेप क्या होगा -2. सो पहले 8 आएगा देन -2 किया स्टेप, मतलब स्टेप हम -2 का ले रहे हैं. सो 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा. 1 को इंक्लूड करना ही नहीं है, अगर हम माइनस भी करते हैं तो 0 आएगा. ठीक है, सो दिस इज़ द आउटपुट. सो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप. लाइक व्हाट इज़ द स्टेप यू वांट टू टेक टू मूव, हाउ मेनी स्टेप यू वांट टू लाइक टेक टू मूव. ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ से कहाँ तक जाना है, बट स्टॉप की जो वैल्यू है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, और स्टेप हम कितना स्टेप लेना चाहते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द प्रिंटिंग like range 2 to 10 and taking the step of 2. So what will be the output? 2 4 6 8
10 विल नॉट बी इंक्लूडेड, सो यही होगा। फिर हमने उस रेंज डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, सो लिस्ट। एक्चुअली ये रेंज डेटा टाइप है ना, सो हमको इसको अगर जैसे लिस्ट के कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने तो लिस्ट में कन्वर्ट करना ईजी रहता है, आप डायरेक्ट लिस्ट लिख सकते हैं। सो इट विल बी कन्वर्टेड टू लिस्ट, स्क्वायर ब्रेसेस के साथ आ जाएगा, अदरवाइज़ वो रेंज टाइप का डेटा टाइप है। हाँ, नाउ आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। सो अब हम स्ट्रिंग के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था, बट सम लाइक फंक्शंस आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस टू यू ऑल, that's why I included that topic also. This is the fundamental data type string, but it is immutable in nature. Immutable means sequence of characters को बोला जा रहा है, like if you define the string like Python, so you can't change this N O H T, these are the characters ना। so string basically क्या होता है, collection of characters ही तो होता है, okay? सो आप किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं, यही कहना चाह रहा है। दैट्स वाई इम्यूटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टर, ओके। सो बेसिक ऑपरेशंस यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, लाइक आप प्लस करते हैं तो वो कॉन्कैट कर देता है, दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर देगा, ठीक है। रिपीटिशन मीन्स जैसे कि आप मल्टीप्लाई करते हैं ना 2 into 3, सो 2 into 3 मीन्स 6, कि 2 को आप 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। वैसे आप स्ट्रिंग को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो आप उसको उतने टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स उतने टाइम उसको आप रिपीट कर रहे हैं। जैसे हाई को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाई 3 टाइम्स रिपीट होगा, सो दैट्स वाई हाई हाई हाई, ओके। इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज़ करते हैं। जैसे आपको स्ट्रिंग का 0th इंडेक्स चाहिए, 0th इंडेक्स वैल्यू चाहिए जो कि p है, तो जैसे स्ट्रिंग है अगर s, तो x of 0, ओके, सो दिस विल गिव p एज आउटपुट। सो इसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स को भी फैच कर सकते हैं इन द स्ट्रिंग ऑल्सो। सो इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज्ड इन स्ट्रिंग ऑल्सो, ओके। फिर स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग जैसे हमने रेंज में पढ़ा हुआ था 1 से 4, सो आप 1 2 3 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, स्टॉप वाले को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो YTH, ओके, दिस विल बी फेच्ड। 1 मीन्स फर्स्ट इंडेक्स, हम इंडेक्स वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही लेंथ हो गया। देखिए रेंज में क्या हो रहा था, हम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जा रहे थे, बट यहाँ जो है ना स्लाइसिंग में क्या होता है, हम इंडेक्स वैल्यू बताते हैं कि इंडेक्स वैल्यू हमें फेच करनी है, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स तक अप टू 4, मीन्स 4 इज़ नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड। फिर आप लेंथ फंक्शन से आप लेंथ निकाल सकते हैं। मेंबरशिप इसमें भी है, लाइक इफ़ यू वांट टू चेक इज़ देयर एनी कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग और नॉट, लाइक H इन हेलो, देन इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन दैट। फिर आपके कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस भी हैं, मेथड्स हैं, जिसको ऐसे अपर फंक्शन आपके सारे अपर केस में कन्वर्ट करता है, लोअर फंक्शन लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा सारे कैरेक्टर्स को। कैपिटलाइज ओनली क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। टाइटल हो गया, टाइटल क्या करेगा कि होल स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स होंगे उनके सारे फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल फॉर्म में अपर केस कर देगा, ठीक है। मीन्स कैपिटलाइज सिंगल वर्ड के साथ था, अब टाइटल क्या है, आपके पूरे स्ट्रिंग में जितने भी होंगे कैरेक्टर जितने भी वर्ड्स होंगे सबके साथ कैपिटलाइज परफॉर्म करेगा। स्वैप केस क्या है आपका जैसे ये देखिए, स्वैप केस क्या होता है, अगर आपने जितने भी एक स्ट्रिंग या फिर एक जैसे वर्ड सिंगल वर्ड डिफाइन किया, अब उसमें क्या होगा कि कुछ लेटर्स अपर केस में होंगे, कुछ जो हैं वो लोअर केस में होंगे, तो स्वैप कर देगा। जो अपर केस में होंगे उनको लोअर केस में कर देगा और जो लोअर केस में होंगे उनको अपर केस में कर देगा, ठीक है। स्वैप केस बोलते हैं इसको। फिर स्ट्रिप है, स्ट्रिप क्या करता है, स्पेसेस, वाइट स्पेसेस, जहाँ भी आपने स्पेस दिया है उसको रिमूव कर देगा। लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्पेस था, यहाँ भी स्पेस था, तो इसने सारे स्पेसेस को रिमूव कर दिया। एल स्ट्रिप है एंड आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप लेफ़्ट साइड से स्पेस रिमूव करेगा, आर स्ट्रिप राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करेगा, ठीक है। ये कुछ उसके सब फंक्शंस मीन्स सब कैटेगरी बोल सकते हैं स्ट्रिप फंक्शंस की। फिर कुछ और भी हैं, यू कैन गो थ्रू विद दिस ऑल। मैंने आपके लिए लिखा हुआ है बेसिकली, आप इसको एक बार पढ़िए, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वो हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। बट बेसिकली दीज ऑल फंक्शंस आर लाइक बेसिक फंक्शंस, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
लाइक आप पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी भी स्ट्रिंग में, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या देखिए, स्प्लिट है। स्प्लिट तो हमने देखा ही है कि जैसे आपके पास स्ट्रिंग है एंड इफ़ यू वांट टू स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू लाइक इनटू द लिस्ट ऑफ व्हाट यू कैन से, लाइक इफ़ यू हैव अ स्टेटमेंट एंड देयर आर स्पेसेस इन दैट स्टेटमेंट, सो स्पेसेस मीन्स एक वर्ड के बाद आप स्पेस देते हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्प्लिट द स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द स्पेसेस, सो ऑल द वर्ड्स विल बी स्टोर्ड एज अ लिस्ट। मीन्स आपका जो स्ट्रिंग है वो किसी भी कैरेक्टर या फिर किसी भी कैरेक्टर या फिर कोई भी, जैसे कि यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द स्ट्रिंग A, B, C। सो ये कॉमा के बेसिस पे किसी भी कैरेक्टर या फिर किसी भी एलिमेंट के बेसिस पे आप स्प्लिट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। जैसे यहाँ कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट किया है तो A, B, C, लिस्ट मिल गई स्प्लिट करने के बाद। वैसे ही जॉइन है, आप जॉइन करना चाहते हैं लिस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ आपके पास कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग जो भी है, स्ट्रिंग है मान लीजिए, आप उनको जॉइन करना चाहते हैं। सो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं आप किस बेसिस पे जॉइन करना चाहते हैं। जैसे आप स्पेस के बेसिस पे जॉइन करते हैं तो स्ट्रिंग ऐसे बनती A स्पेस B, बट आपने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये साइन दिया हुआ है। सो दैट्स वाई आप इसके अकॉर्डिंग आपका जो डिफरेंट एलिमेंट था लिस्ट का वो जॉइन हो गया, ठीक है। वैसे आप बाकी फंक्शंस को भी चेक कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी इशू देन वी विल सी इन दोज थिंग। मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, लाइक यू कैन गो थ्रू विद दीज फंक्शन एंड आप इसको एक बार रन करा के भी देख लीजिएगा। स्ट्रिंग हमने पहले ही डिस्कस किया था, बट कुछ फंक्शंस थे मेरे दिमाग में जो मैं इस वीडियो में दिखाना चाहता था, वो फंक्शंस मैंने इंट्रोड्यूस किए। बाकी यहाँ पे ये कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो मेंबरशिप की तरह काम करते हैं, मीन्स ट्रू और फॉल्स देंगे। जैसे कि इज़ एल नम, क्या वो स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मीन्स उसमें नंबर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो ट्रू और फॉल्स देगा, ठीक है। इज़ स्पेस, क्या स्पेस भी है उस स्ट्रिंग में, सो उस बेसिस पे ट्रू और फॉल्स देगा, ठीक है। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर ईजी टू अंडरस्टैंड, नॉट यू विल नॉट हैव एनी इशू, ओके। इसको एक बार चेक करिएगा, अगर कोई इशू होता है तो। इसमें से भी हम सारे फंक्शंस यूज़ नहीं करते हैं, कुछ बेसिक फंक्शन ही है जो कॉमनली यूज़ होते हैं जनरली, बट मैंने सारे ही मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ आइट्रेट थ्रू स्ट्रिंग। मैंने सारे ही अदर डेटा टाइप के साथ कैसे आप आइट्रेट करेंगे वो भी लिख रखा है। लाइक इन इफ़ यू वांट टू आइट्रेट थ्रू स्ट्रिंग देन इट विल आइट्रेट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब एक स्ट्रिंग में उसका बेसिक एलिमेंट क्या है, कैरेक्टर है, बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो और इम्यूटेबल भी होता है, मीन्स आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। सो कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे। फॉर कैर इन टेक्स्ट मीन आपको टेक्स्ट के अंदर जो भी कैरेक्टर है ईच कैरेक्टर को फेच करना है और उसके बेसिस पे आइट्रेट करेंगे हम। लाइक फॉर कैर इन टेक्स्ट एंड प्रिंट कैर, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, PYTHON, दिस विल बी द आउटपुट, ओके। बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू लाइन कैरेक्टर भी प्रिंट इंक्लूड करता है, तो जितनी बार प्रिंट करेंगे वो न्यू लाइन पे करेगा प्रिंट, ठीक है। सो पाइथन ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लूप चलाया है। फॉर कैर इन टेक्स्ट मीन्स जो टेक्स्ट है, जो स्ट्रिंग है, उसका ईच कैरेक्टर लेके आओ और उसको प्रिंट करा दो। इसके बारे में हम देखेंगे, लूप अभी हमने डिस्कस नहीं किया बट मैंने फिर भी इंक्लूड किया है जस्ट फॉर यू, ठीक है, आपको समझ में आए कैसे आइट्रेट करना है। अब आप अगर लिस्ट लेते हैं तो लिस्ट का एक बेसिक एलिमेंट क्या होता है, लाइक एप्पल, बनाना, चेरी, दीज आर द एलिमेंट्स। सो आप फ्रूट्स जो लिस्ट था इसमें जब आइट्रेट करेंगे तो एलिमेंट बाय एलिमेंट आइट्रेट करेंगे। पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना आएगा, फिर चेरी आएगा, एंड लाइक फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, सो ईच टाइम वी आर प्रिंटिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट। सो एप्पल पहले प्रिंट होगा, देन बनाना प्रिंट होगा, देन चेरी होगा, ठीक है। अब आइट्रेट थ्रू टपल में भी क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट वाइज उसको फेच करेंगे और प्रिंट कर देंगे। फॉर डी इन डायमेंशंस लिखा हुआ है ना, मीन्स डी क्या है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक 10, 20, 30 इन डायमेंशंस हमारा पूरा टपल है, देन प्रिंट कर दिया हमने। सेट के थ्रू भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब आप पर्टिकुलर एलिमेंट वाइज ऑर्डर्ड है ना, तो एलिमेंट वाइज हम फॉर कलर इन कलर्स, फिर इससे क्या होगा, सिंपल आपका एक एलिमेंट उठ के आएगा और वो प्रिंट हो जाएगा, इजी। अब आइट्रेट थ्रू डिक्शनरी कीज़,
अब आपको अगर कीज़ फेच करनी है सिर्फ डिक्शनरी की, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, फॉर की, ये कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल, फॉर की इन डिक्शनरी, ठीक है। सो प्रिंट की, ठीक है, प्रिंट कर दिया हमने की को। अभी आप ये मत सोचिए फॉर कैसे लिखा है या प्रिंट क्या करता है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं डेटा टाइप बता रहा हूँ। बस आपको सूडो कोड समझिए इसको, या फिर एल्गोरिदम समझिए, ठीक है, कि हमने प्रिंट किया की को। अब आप फॉर की इन डी लिखते हैं तो ये आइट्रेट करेगा कीज़ के थ्रू डिक्शनरी के। सो की क्या है, नेम, एज, सिटी। तो क्या होगा आउटपुट में, नेम आएगा, एज आएगा, सिटी। अभी हमने सिर्फ कीज़ को फेच किया है लाइक दिस। सो आप डिक्शनरी में से अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं फॉर की इन डी, तो आपको सिर्फ कीज़ मिलेंगी। बट इफ़ यू वांट ओनली वैल्यूज़, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डी डॉट वैल्यूज़ फंक्शन। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर वैल इन डी डॉट वैल्यूज़। तो अब आप डी डॉट वैल्यूज़ फंक्शन जब आप यूज़ करेंगे, देन यू कैन ओनली फेच द वैल्यूज़ लाइक अलाइस 25, देन डेली, these things will be fetched then, okay, डॉट वैल्यूज़ फंक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपको की वैल्यू पेयर दोनों ही चाहिए, देन यू हैव टू यूज़ द डॉट आइटम्स फंक्शन, जो कि हमने डिक्शनरी में पहले ही देखा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने डॉट वैल्यूज़ वाला फंक्शन यूज़ किया है, देन इट विल गिव ओनली द वैल्यूज़ ऑफ दैट डिक्शनरी, ठीक है। सो आइट्रेट यूजिंग रेंज में तो ईजी था, मैंने आपको पहले बताया, फॉर आई इन रेंज क्या है, 5 बोल दिया, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा स्टार्ट, तो 0 1 2 3 4, दीज थिंग्स विल बी इन आउटपुट, ओके। रेंज फंक्शन, इसके थ्रू हम डायरेक्ट रेंज फंक्शन बोल दीजिए या फिर रेंज डेटा टाइप बोल दीजिए। हमने क्या बोला कि रेंज एक डिफ़ाइन किया, अब वो क्या करेगा कि जो रेंज देगा वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होंगे, इसका कोई डेटा टाइप नहीं है। अब आपको जैसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है रेंज को, वो एक रेंज डेटा टाइप है, उसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन कन्वर्ट इन लिस्ट, ओके। देन यू कैन इजीली परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लिस्ट फ्रॉम दैट रेंज, ठीक है। तो ये भी इजी है। अब आप इसको क्या करेंगे, रेंज वाइज 0 to 4 आपका 1 by 1, अगर आपने जैसे 5 दिया है रेंज में, तो 0 to 4 ईच एलिमेंट फेच होगा और उसको आपने प्रिंट करा दिया, या फिर और कुछ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, आइट्रेट यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप के बारे में हम बाद में देखते हैं, अभी इसके बारे में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लूप पढ़ाऊँगा तो वाइल एंड फॉर डिटेल में, ठीक है। आइट्रेट विद इनुमरेट फंक्शन क्या करता है एक्चुअली, इट हेल्प्स यू टू फेच इंडेक्स एंड वैल्यू बोथ। जैसे आपने लिस्ट डिफाइन करी है, कैट, डॉग, एलिफेंट, ठीक है। सो ये कैट क्या है, इट इज़ हैविंग 0th इंडेक्स, दिस इज़ हैविंग फर्स्ट इंडेक्स। अभी मैंने इंडेक्सिंग के बारे में बताया, सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। सो आपको इंडेक्स और वैल्यू दोनों ही चाहिए, देन यू विल यूज़ इनुमरेट फंक्शन, ठीक है। लाइक फॉर इंडेक्स कॉमा एनिमल मीन्स दिस एलिमेंट, ठीक है। सो व्हाट विल बी द इन द आउटपुट, दिस विल प्रिंट 0 कैट, फर्स्ट डॉग, सेकेंड एलिफेंट, मीन्स you are fetching the index value and the element both, okay, corresponding to that index। आप इंडेक्स वैल्यू और जो एक्चुअली वहाँ एलिमेंट है उस इंडेक्स पे, दोनों को साथ में फेच करने के लिए आपको इनुमरेट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, लिस्ट के साथ। अब यहाँ जिप क्या करता है, आइट्रेट यूजिंग जिप किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ यू वांट टू हैव द पैरेलल आइट्रेशन। जैसे आपको क्या करना है, 2 लिस्ट हैं L1 एंड L2, अब आपको इनके फर्स्ट एलिमेंट को साथ में फेच करना है, सो यू विल परफॉर्म जिप। आप जिप फंक्शन को यूज़ करके इस L1 और L2 दोनों को जिप कर देंगे, मीन्स साथ में जोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर E1 और E2 इन जिप। सो E1 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, L1 के, E2 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, L2 के। सो E1 इज़ द एलिमेंट फ्रॉम L1, E2 इज़ द एलिमेंट फ्रॉम L2। सो ये साथ में ही आइट्रेट करेंगे, ठीक है। सो मोस्टली दोनों के साइज़ सेम होना चाहिए L1 एंड L2 का। जैसे कि यहाँ पे नेम्स एंड स्कोर है, सो दोनों अलग अलग लिस्ट है, बट हम साथ में फेच कर सकते हैं जिप को यूज़ करके, जिप नेम्स एंड स्कोर्स। सो हमने नेम और स्कोर, सो नेम कहाँ से उठ के आएगा, नेम्स में से, स्कोर कहाँ से उठ के आएगा, स्कोर्स में से। सो
सो आप नेम और स्कोर साथ में यूज़ कर लिया आपने। और ये प्रिंट करने का फंक्शन, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, अभी आप इसको मत सोचिए। ठीक है, सो मैं इसको भी इंक्लूड करूँगा फॉर्मेटिंग को। फॉर्मेटिंग ये एक तरीका है प्रिंट करने का, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कि हाउ वी यूज़ फॉर्मेटिंग टू प्रिंट द एलिमेंट्स और थिंग। ओके, हाउ यू कैन यूज़ फॉर्मेटिंग, आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आई थिंक जिप इज़ क्लियर नाउ। नेस्टेड लूप क्या होता है? अब नेस्टेड लूप को आपको बताने के लिए ये करना पड़ेगा, क्या नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? अभी मैंने लूप के बारे में बताया नहीं, बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक इफ़ यू आर हैविंग, जैसे कि हमने 2D लिस्ट के बारे में पढ़ा था, तो 2D लिस्ट क्या होता है? लिस्ट के अंदर लिस्ट होते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा? इस लिस्ट के अंदर तो आइटरेट करना ही पड़ेगा, बट इनके सब लिस्ट के अंदर भी आइटरेट करना पड़ेगा, तभी तो आप एलिमेंट्स को फेच करेंगे। तो दैट्स वाई यू हैव टू परफॉर्म द नेस्टेड लूप। लाइक फॉर E1 इन L1। अब E1 क्या है बताइए? E1 इन L1 के अंदर जो सब लिस्ट है वही तो E1 है, वही तो एलिमेंट्स है। सो इस फर्स्ट एलिमेंट को E1 बोल दिया, चलो मान लो। सो फॉर E1 इन L1, अब आपको इस एलिमेंट को, इस सब लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको फेच करने के लिए एक और लूप बनाना पड़ेगा। फॉर E2 इन, क्या लिखें? E1 ही तो लिस्ट है वो। तो फॉर E2 इन E1 देन प्रिंट, सॉरी, for print then print E2. okay, then this element will be printed. When this will be ended, when E1 will be completed, then E1 will be denoted to the next element. okay, E1 जो होगा वो next element को denote करेगा जो main list है। then other उसके बाद क्या होगा? जो हमारा for loop है वो इस एलिमेंट के साथ चलेगा, देन इसके भी एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, तो हमारे all 6 एलिमेंट्स विल बी प्रिंटेड बाय दिस। सो दिस इज़ द नेस्टिंग, नेस्टेड लूप इसको बोलते हैं। बाकी लूप्स जब मैं पढ़ाऊँगा तो और डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। ये तो मैंने जस्ट आपको कैसे अदर डेटा टाइप्स के साथ आइटरेशन परफॉर्म किया जाता है ये इंट्रोड्यूस करने के लिए किया। अब एक एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। हमने जो डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, बेसिक है, वैसे आप और भी करके देख लीजिएगा, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव वन एग्ज़ाम्पल, so that's why I included. Yeah, so here we define, like I defined a particular list, sorry dictionary। और आप डिक्शनरी के कैसे आप की वैल्यू पेयर को फेच कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था। So here I defined a dictionary, 1 is key, 3 is value, 2 is key, 344 is value, 3 is key and 232, whatever is written, these are the value and key pair. Then we are fetching key comma value in d dot items। items function बताया था ना मैंने, रन करके देखते हैं क्या आता है। की वैल्यू पेयर दोनों ही आउटपुट में आ रहे हैं, वेरी गुड। ओके, और आपने कहा सर सिर्फ कीज़ को कैसे फेच करें? भाई सिर्फ डिक्शनरी दे दो और लिख दो की इन डी। ओके, सॉरी वैल भी हमने लिखा है, एरर आ सकता है, या क्योंकि वैल तो हमने डिफाइन ही नहीं किया है ना, यू हैव टू रिमूव दैट। अब देखिएगा सिर्फ की आएगा, या वेरी गुड। अगर आपको इसके साथ में ही वैल्यूज़ भी चाहिए तो क्या करें हम? ईजी है, मैंने बताया था डिक्शनरी देन स्क्वायर ब्रेसेस, then you have to define the key inside that। okay, तो आपका जो की है उसके साथ आप की तो फेच कर रहे हैं, बट आप की के थ्रू वैल्यूज़ फेच कर सकते हैं, इजी है। अगर मैंने कहा कि हमें सिर्फ वैल्यूज़ ही चाहिए, and what you can do, you can perform it by using dot values function, dot values function। अब वैल्यूज़ फेच कर रहे हैं तो ये की वेरिएबल हटा देते हैं, वैल वेरिएबल रख देते हैं, ये तो हमारे ऊपर है ना, ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए बेसिकली। देखिए अब वैल्यूज़ आ रहा है, ठीक है। सो दिस मच इज़ आई थिंक
enough for this. If you have any doubt, then we can have another class for that. But what I wanted to say one thing, like if you are defining a variable या फिर कोई भी आप variable define करते हैं, so it can be understandable आपके लिए, like A B C D आप define तो कर सकते हैं, use कर सकते हैं variables, but it is not understandable. आप 10 दिन बाद अपने कोड को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा A क्या है B क्या है. तो दैट्स वाई जो भी आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, सो आप उसको ऐसे डिफ़ाइन करें. अभी हमने आइडेंटिफायर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, बट मेरे कहने का मतलब है जो भी ह्यूमन डिफाइंड वेरिएबल्स हैं उनको कोशिश ऐसा करना है हमें कि दोज वेरिएबल्स कैन बी हैव सम मीनिंग, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, कैन बी अंडरस्टैंडेड. सो दैट्स द होल थिंग विच आई वांटेड टू मेंशन. सो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस क्लास. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.